جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف ڈالیں جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف نشر کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المحترم کی اور بالخصوص اس سے ایک دن پہلے کا درس ہم سب کو میسر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ما سبق کی تمام شرکت کو اور عبادتوں کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے اور واقعی ہم سب کو عید نصیب فرمائے۔ یہ واقعی کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہر وہ کام کرنے کا جذبہ اور توفیق دے جس سے اس میں اس کی اور اس کے حبیب کی رضا اور خوشنودی پوشیدہ ہو۔ یہی سچی عید ہے اور یہی پیغام عید بھی ہے۔ گزشتہ درس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیت نمبر 41 میں اس بات کی صراحت کی گئی تھی کہ آخری گواہی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک اور ان کی امتیوں تک سب گواہی ایک دوسرے کے لیے دیں گے، لیکن سب سے آخری گواہی جو ہوگی میدان محشر میں، اور اسی آخری گواہی کے بیس پر مغفرت کا سلسلہ ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی جب بھی تلاوت کی ہے تو آپ کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو نکلے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں آپ روئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے سب کی گواہی دینے کے لیے کہا ہے اور سب کا گواہ بنایا ہے، میں اپنی گنہگار امت کی گواہی کیسے دوں؟ تو گنہگار امت کے گناہوں کو یاد کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے آنسو لایا ہے۔ یہ اس بات کی صراحت ہے کہ امت سے، بالخصوص گنہگار امت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا لگاؤ ہے۔ لگاؤ سے مراد کتنے فکر مند ہیں کہ ان کی امت گناہ نہ کرے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی پاسبلٹی اور اپنے تئیں اور اپنے استطاعت کے مطابق انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نہیں رولائیں گے۔ ہمارے آقا ہمارے لیے روئیں، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو خوشی کے آنسو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکالے۔ آپ ہم سب بھی چاہے رات کی تنہائی ہو یا دن کے اجالے ہو، اس بات کا عہد واثق کریں کہ اپنی پاسبلٹی، یہ جملہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں میں، انوائلنٹری میں کوئی گناہ ہو جائے پھر تو نبی شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے کہ نبی کے آنکھوں سے آنسو گرے، اس تصور میں کہ میری امت اپنے لیول کو نہ سمجھتے ہوئے اس طرح کے گھٹیا کام نہیں کر سکتی، کیوں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھ کر خوشیوں کا ماحول دے اور آقا ہم سب سے خوش ہو جائیں اور ہمارے گناہوں پر نہ روئیں۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، لیکن انجانے میں جو گناہ ہوتا ہے
اس کا ہم اقرار کرتے ہیں. جان بوجھ کر کے گناہ کرنے کے لیے تو پھر سوچ لیجئے آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو جانے انجانے دونوں گناہوں سے بالخصوص جان بوجھ کر نہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 4-5 باتیں یاد رکھیے گا, پھر انشاءاللہ آپ کی عید ہماری عید ہوگی, یقیناً ہوگی. اور بالخصوص اپنی عیدوں میں دعاؤں کے حوالے سے اہل فلسطین کو اور اہل غزہ کو ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ وہ ہمارے مومن بھائی بہن ہیں. اور اگر آپ نے عید کے دن اپنی صرف خوشی کے لیے, اور اپنی خوشی ایک بات اشارہ کر دے رہا ہوں, کل کی جو عید اگر ہوگی, اب سعودی عرب میں ہو ہی گیا, گلف میں ہے نہیں, تو ممکن ہے, ہاں تو اب ہو ہی گیا, تو ہاں جی وہاں کے شیطان کھل گئے ہیں, اب ذرا آنا چاہ رہے ہوں گے انڈیا بھی, تو ابھی روکے سوئے. اس لیے اگر ہو گئی, چونکہ ہمیں حکم ہے کہ چاند دیکھ کر عید کرو, چاند دیکھ کر روزہ رکھو, اس لیے اگر کا لفظ کہہ رہا ہوں, ہم کسی ملک کے تابع نہیں ہیں, ہم چاند کے تابع ہیں, اللہ پاک کے رسول کے حکم کے تابع ہیں. تو اگر ہم لوگوں کو میسر ہوا تو سب سے پہلے تو عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا جو بھی صاف صفائی پاک صاف اچھے سے کر کے, صاف صفائی تو آج ہی کر لیں گے آپ ماشاءاللہ. اچھا, اس سے پہلے, کل سے پہلے جو آج رات میں آپ کو کیا کرنا ہے, آج رات میں ایک وقت کی بھی, آج کی نماز تو چھوڑنا ہی نہیں, دھیان رکھیے گا, ایک وقت بھی نہیں, بالخصوص دھیان میں رکھیے گا, ایک وقت بھی نہیں چھوڑیے گا. اگر چاند ہو گیا تو تراویح نہیں ہوتی, چاند ہو گیا تو تراویح نہیں, اس لیے تو تراویح بعد میں ہوتی ہے نا, تاکہ چاند پہلے دیکھ لیں آپ. اگر اپارٹمنٹ ہے تو سب سے اوپر چلی جانا چاند دیکھنے واسطے انشاءاللہ. چاند دیکھنے کا حکم ہے, اگر چاند دکھ گیا یا اس کی تصدیق ہو گئی تو تراویح نہیں ہے. تراویح نہیں کا مطلب خوش نہیں ہونا, قرآن پڑھ لینا, تراویح نہیں ہے آج اگر چاند ہو گیا تو. دوسری بات, یہ مغرب کا جو وقت ہے آج کا بڑا اہم وقت ہے آپ ہی کی. اب آپ ہی کی کیا, آپ جن کے جن سے ہیں, آپ کی جن سے کیوں بولوں میں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا قبولیت کی وقتوں, جگہوں اور راتوں کے حوالے سے, تو ان میں ایک رات, یہ عید کی رات جو آج کی رات آپ کو ملے گی, آج کی رات قبولیت کی رات ہے. کوئی بھی آپ عبادت کیے ہوں, آپ وہ ساری عبادتوں کو ایک دم یاد کر کر کے, اگر تیری رضا کے لیے ہے مولا, اگر میں نے کیا ہے تو قبول فرما, اور اگر تیری ناراضگی کا سبب ہے تب بھی معاف فرما, یہ دونوں بات دھیان میں رکھیے گا. تو آج کی دعا میں تو یہی کہوں گا کہ نیکیوں کو یاد کرنے کی دعا نہ کیجیے, بلکہ گناہوں سے بچنے کی ضرور دعا کیجیے, کیونکہ نیکیوں کی کوانٹٹی آپ کے پاس محدود ہے, گناہوں کی جو ہے وہ لامحدود ہے. اس لیے ما سبق اور پاسٹ میں جو گناہ ہوئے ہیں, جیسے آپ فرسٹ رمضان ہی سے آپ لے لیں کہ کتنا چوک ہوا, کتنی لڑائی کیے, کتنے جھگڑے کیے, کن کن کو ڈانٹا کرے, گلاٹا کرے, مارے, یہ کرے وہ کرے, اب کتنے توڑ پھوڑ ہوئے ہوں گے, مطلب ہاتھ پاؤں سے نہیں, زبان سے تو برابر ہوئے ہوں گے. تو وہ سب کو یاد کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے. تو آج کی رات اگر کہوں تو معافی کی رات ہے, اللہ پاک سے لینے کی رات ہے. میں اس بات کی بڑی ابھی اپنی عورتوں میں یہ ذہن دے رہا تھا کہ تم لوگ کتنی قسمت والی ہو یار, کہ بغیر معافی مانگے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معافی دے دیتا ہے کہ نہیں. جہاں پیریڈس آیا, اللہ پاک کہہ رہا جاؤ آرام کرو, جا کر نماز نہیں پڑھنا, کیا معافی ہے نہیں, یہ معافی مل گئی نماز کی, بڑی قسمت ہے یار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک جو ہے عورتوں کے حوالے سے, اور اسی لیے قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی میں بھی عورتوں کی طرف جو ایک مائلانہ پہلو ہوتا تھا, وہ نفسیاتی طور پر نہیں, وہ اور نسوانیت کے باب میں, کہ عورتیں جو کمزور ہیں, جو صنف نازک کا ایک تصور ہے. اس لیے عورتیں مطلب رونے کے معاملے میں بہت زیادہ ہے, ذرا سا بھی اگر کچھ کو تو پڑا ان کے آنکھ سے آنسو گر جائے. تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ کے آنکھوں میں بڑے آنسو ہیں, آج کی رات میں آپ گرائیے, اپنے لیے, اپنوں کے لیے, گناہوں کی بخشش کے لیے, جو آپ کی جتنے گر سکتے ہیں آنسو, قسم سے آج گرا دیجیے آپ اپنے آنسوؤں کو, جتنا رونا ہے آج رو لیجیے اللہ کے لیے, اور بخشوا لیجیے اپنے آپ کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, بھائی کو, بہن کو, جتنے بھی خاندان کے شوہر ہے, باپ ہے, ماں ہے, سب کو ایک دم بالکل. آپ کے آنکھ میں بڑے آنسو ہوتے ہیں, انسان تو تھوڑا گھٹ دل ہوتا ہے, وہ جب کوئی چیز کھوتی ہے تبھی روتے ہیں وہ,
लेकिन औरतों को तो अगर रोते सो को देख लिए तो उनकी भी आंख से आंसू गिर जाते पड़ाक से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जरा डांट दिए तो रोना शुरू कर देते। हाँ, इसलिए मैं बड़े अदब से आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि दुआ कीजिए हम सब के लिए भी, अपनी नस्लों के लिए भी और नस्लों के लिए भी, बिलखुसूस नई जनरेशन के लिए ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सिरात मुस्तकीम पर रखे, इस्तिकामत दे और दीनी जज्बा से सरशार करे और बिलखुसूस उन्हें नमाजी बनाए और तिलावत कुरान उनके अदाओं में दे और उनके हाथ में कुरान दे दे और उनको खास तौर से मोबाइल की लत से महफूज फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है, मैं हर जगह इसका ज़हन दे रहा हूं और इसको मसले के दौरान अच्छी चीज देख रहे हैं, नक्को देख अच्छी चीज भी। अब नमाज आप जब अल्लाह अकबर बोल देते हैं तो खाना तो अच्छी चीज है ना, लेकिन खाते हैं आप नहीं। हर अच्छी चीज का हुक्म नहीं है आपको। खाना अच्छी चीज है, सलाम करना अच्छी चीज है, माँ बाप के हाथ पांव दबाना अच्छी चीज है, लेकिन नमाज जब शुरू कर दिए तो ये सब नहीं कर सकते आप। तो हर अच्छी चीज का एक कंडीशन होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ये कहती हैं कि मोबाइल लेकर मैं कुरान पाक देख रही थी, तिलावत देख रही थी, ये कर रही थी, नहीं, वो मत कीजिए आप, क्योंकि वो अट्रैक्शन आपका मोबाइल में रहता, वो अल्लाह की तरफ नहीं रहता। इसीलिए जरा सा भी अगर उसमें बैटरी ऑन हो गई, ये परसेंटेज कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फटाक से आपका जहन चला जाता है चार्जिंग में, इसमें उसमें। इसलिए जो अट्रैक्शन, जो तवज्जो, जो खुशू खुजू का उन्वान था वो खत्म हो गया। तो आपको अगर एक ही सूरह कुल वल्लाही याद है तो आप इसी को आप पढ़िए और अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हुए पढ़िए। कुरान की तिलावत करके दुआ कीजिए, दरूद पढ़ करके दुआ कीजिए। जो पढ़ी हुई है उन सबको भी जमा करके आज की रात बिलखुसूस घर में जितने मिंबर हैं कसम से सब बैठ करके इफ्तारी जरूर कीजिए। आज की इफ्तारी बड़ी बड़ी कबूलियत की इफ्तारी है, खुदा से मुलाकात की इफ्तारी है, खुशियों की इफ्तारी है, हर चीज आपको मिलने वाली इफ्तारी है। इसलिए ये वक्त जो है आप जाय नहीं कीजिएगा इंशाअल्लाह। आज एकदम सब मिलकर, और जिनसे आपस में होता है ना, बहन बहन में, तुम्हारा कपड़ा अच्छा आया जी, तुम्हारे को ज्यादा प्यार करते पापा, हाँ तुम्हारे को ये वो सब खत्म कर देना। माँ कपड़ा तो आज न कल वो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन अमल आपका आपके साथ रहेगा, आपकी नेकियां आपके साथ रहेंगी। इसलिए मैंने कहा था कि नया कपड़ा पहनना ईद नहीं है, खुदा को खुश कर देना ईद है, खुदा को राजी करना ईद है। इसलिए आप पर लाजिम यह है कि जो ये गोल्डन चांस मिला है आज, अभी से लेकर के कहीं भी इधर उधर नहीं अपने वक्त को जाय ना कीजिए। अब मेहंदी उदी लगाना लगाइए, हम नहीं कहते हैं, लेकिन मेहंदी लगाते वक्त भी आप माशाल्लाह हजरत खदीजा का जिक्र कर सकती हैं, हजरत फातिमा का जिक्र कर सकती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज था कर सकते हैं आप, हम रोकेंगे नहीं आप। लेकिन आप अगर ये सोचते हुए मेहंदी लगाएं कि आप मोबाइल से सर्च कीजिए कि हाँ फिल्म की वो हीरोइन कैसा लगाती, वो सीरियल वाली कैसा लगाती है, तब तो फिर उल्टा हो गया, वो अजाब हो गया, वो बेकार हो गया, कुछ नहीं हो। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, झाड़ू भी दे रहे हैं आप माशाल्लाह, तो आप अपनी तिलावत में मगन रहिए। आप कुछ भी आप कर रही हैं तो या तो आप दरूद पढ़िए या आप नेकों का जिक्र कीजिए, अच्छी बातें कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बात कान में आ भी जाए तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िए। अब ये जमाना है, मॉडर्न जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ ना कुछ आ ही जाता कान में। इसलिए आज की जो इफ्तारी है और इफ्तारी के बाद जो खास तौर से कल का पूरा दिन मगरिब से पहले तक, अब क्लियर कह रहा हूं, एक वक्त की भी नमाज ने जो नमाज पढ़ने के काबिल है वो नमाज एक वक्त की भी ना छोड़ें, जिक्र और औराद में एकदम लें। उसको एकदम यूं समझिए ना, अभी अगर किसी की शादी का उन्वान हो, कैसा एकदम सोचते हैं क्या होता आगे, क्या होता, कैसी जिंदगी कटती, एकदम जहन में यही रहता कि क्या होता। माँ अलग सोचती, बीवी बनने वाली अलग सोचती, बहन अलग सोचती क्या होता इनकी लाइफ, सारा उन्वान वहीं पर है। अब आपको एक सोच दे रहा हूं, अल्लाह ताला देने वाला है। अब आपको क्या सोचना, क्या देता अल्लाह, कितना देता अल्लाह, कैसा देता अल्लाह, ये सोचना है हमको। हमने कितना किया, उस कितने के बदले में हमको अल्लाह ताला देने वाला। अल्लाह ताला तो फरमा रहा फरिश्तों के सामने कि जो पूरा पूरा रखे हैं उसको हम पूरा पूरा देने वाले हैं, और विटनेस बनाया फरिश्तों को कि फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि हमने इनको पूरा पूरा अज्र दे दिया है। और पूरा पूरा अज्र ये है कि आपको पूरी तरह से बख्श देगा, पूरी तरह से बख्श देगा। फरिश्ते इतने आएंगे कतार दर कतार की जगह नहीं होती, हर गली कूचे में वो रहते हैं। क्या समझ रहे हैं आप, पान खा करके खड़े रहते हैं हमारे बच्चे, वो सोचते हैं कि ईद हम मना रहे। हर गली कोचे में फरिश्ते रहते। इसीलिए हुक्म ये है कि जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते से ना हो दूसरे रास्ते से भी जाओ, ताकि फरिश्ते यहां भी देख ले वहां भी देख ले। एक हिकमत ये भी है।
यहां भी देख ले वहां भी देख ले, और उनकी आंखों में आप आ जाए और अल्लाह की बारगाह में कह दें कि ये देखिए तकबीर कहते हुए जा रहे थे, जा रहे। तो मर्दों के लिए तो ये है ही, लेकिन औरतों का उन्वान खास तौर से ध्यान में रखें कि ये इफ्तारी एकदम बिल्कुल सब मिल करके, अपने जितने भी हैं फैमिली मेंबर सब मिल करके करें, और उसके बाद हो सके तो एकदम रात जो है अपनों में गुजारे, अपनों ही में गुजारे। आज जितने भी जिंदा लोग घरों में रहते हैं ना, उसकी तरफ जो है आपके इंतकाल किए हुए लोग काफी माइल रहते हैं। हाँ, बल्कि अगर कहूं तो उनकी रूहानियत आज बहुत ज्यादा माइल होती। और अगर घर के हर मेंबर खुश होते हैं ना, तो वो बरज़खी दुनिया में जो कब्र की दुनिया में है, अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से बख्शा होगा, तो वो सब अल्लाह से खूब दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसे ही खुश रखना हमारी फैमिली को। क्या बात, ऐसे ही खुश रखना। देखें, आज आपके लिए अल्लाह माइल है, फरिश्ते माइल है, और आपकी जो पूर्वज है, आपकी जो मतलब पास्ट की जो है, गुजरे हुए जो लोग हैं, वो भी आपकी तरफ माइल है। और आप अगर बेतवज्जो होंगे तो बताइए कितने बड़े सौगात को आप फरामोश कर रही। इसीलिए आप देखते हैं, मैंने तो बहुतों को देखा ईद के दिन नमाज पढ़े, थोड़ा सी दो शेर खुरमा वगैरह खाए और सो गए, फिर असर के बाद ही उठे। हा, क्यों? रात भर जो है आंखा फाड़ फाड़ करके खाली मेहंदियां लगा रहे थे आप तो। हाँ, तो सुबह नींद नहीं आती तो क्या आती? हाँ, ये पकाना वो पकाना, पराठे तराठे क्या क्या सब पकाइए आप, लेकिन आपके जिस्म पर एकदम तरोताजगी होनी चाहिए, और एकदम कि अल्लाह से लेने वाले आप। शौहर तो बाद में देने वाला है यार, वो तो हमेशा देगा। अभी 1 महीने के बाद किसी की शादी हो तो फिर शॉपिंग करना शुरू कर देंगे आप, है नहीं? तो वो तो देने वाला है ही, लेकिन ये रात आपको शायद आइंदा मिले या ना मिले, ये गोल्डन मौका मिले या ना मिले। इसीलिए तो मतलब अलविदा जो रमजान को कहा जाता है, उसकी वजह यही है। वरना हमें भी मालूम है कि 11 महीने के बाद फिर आने वाला है, लेकिन अलविदा का असल मतलब यह है कि ए रमजान तू तो आएगा, लेकिन मैं रहूं या ना रहूं, यह है असल अलविदा का मतलब। इसलिए हम पर, आप पर बेखुसूस लाजिम है कि आप हम सब आज की रात को फरामोश न करें, और अभी से लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके आपस में सहेलियां बैठिए भी तो आप याद कीजिए कैसा रखते होंगे जी फातिमा ज़हरा, कैसा रखते होंगे खदीजतुल कुबरा, जरा किताब है तो देखते हैं, ऐसा इस अंदाज डिस्कस कीजिए भी तो अपने बुजुर्गों के, अपने इनके वो याद कीजिए जो आपके दादाओं परदादाओं, या कोई ऐसी चीज है यानी आपका कट जाए, फिर आप मगरिब के वक्त बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, और एकदम निगाहें पहले ही सोच ले एकदम क्या क्या मांगना है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि 2 चीज जरूर मांगिए आप, कि अल्लाह जब तक जिंदा रख अच्छा रख, और मौत भी ईमान के साथ नसीब करना। ये इतना अगर मांग लिए ना तो पूरी दुनिया खत्म हो गई, दारैन मिल गई आपको, अब बीच की सारी चीजें अच्छी हो गई आपकी। जब तक जिंदा रख अच्छा रख, और जब जाहिर है जब अल्लाह से आप कह रहे हैं अच्छा रख, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छा कैसा रखेगा, आपका जिस्म अच्छा रखेगा, आपकी रूह अच्छा रखेगा, हर तरह से वो। अब अल्लाह कैसा आपके साथ चाहेगा, आपने चाहना कि ऐसा रख अच्छा रख, और अल्लाह से आपने जब कहा, इसी का माना है फिर दुनिया हसना, दुनिया में हसना अच्छा रख, वो फिर आखिरत हसना, और आखिरत में भी अच्छा रख। और आखिरत में अच्छा का मतलब यही है कि मौत ईमान पर हो, खात्मा बिल खैर हो। ये दुआ वक़िना अज़ाबन नार तो है ही, फिर दोनों में अगर दारैन आपको मिल गई तो ये दुआ बिलखुसूस आप करें। हज की दुआ करें, आप खानदान के लोगों की बख्शिश की दुआ करें, फिर जो कुछ भी आप, बच्चियां अगर शादी के लिए नहीं हो रहा है तो उनके लिए दुआ करें, जो भी मांगना। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें पहले ना मांगे, ये बड़ी चीजें पहले मांगे। और अगर एक अहम बात कहूं तो इन दुआ से भी पहले आप ये मांग सकती है, ए अल्लाह अभी से लेकर जो भी दुआ करूंगी मेरी दुआ सब कबूल कर लेना। पहली दुआ ये कर लो, आप ये दुआ कर लो कि अभी तो मैं दुआ करने वाली हूं आगे, लेकिन उन तमाम आगे की दुआओं को मेरी दुआ है, पहली दुआ कि तो सब दुआ कबूल कर लेना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो सब आमीन कहना। आप लोग क्या है, अब शादी जिनकी नहीं हो रही है पर क्या अल्लाह शादी हो गया शादी, अब शादी के दूसरे दिन तलाक का मसला आ जाता, फला का मसला आ जाता, क्योंकि मांगा आपने इजी चीज। आप मांगिए अल्लाह से वो, क्योंकि वो बहुत देने वाला है, और दे करके उसके पास कोई कमी नहीं होने वाली है। आपके यहां तो अगर 2 बार मांगने वाले आ जाएं तो आप चिल्ला दें क्या जी हमारा घर शुद्धि खा, लेकिन अल्लाह का घर वो है कि अगर आप उसके पास नहीं मांगने जाएंगे तो नाराज हो जाता, अरे भूल गए क्या, ऐसा। अल्लाह पाक वो है, वो दे करके थकता नहीं है और आप लेकर के थक जाए। इसलिए छोटी छोटी चीजें नहीं मांगे,
आप अपनी औलाद के लिए मांगे, अल्लाह उनका नसीब अच्छा फरमा, बेटियां हैं उनका नसीब अच्छा फरमा, जब तक वो हमारी अमानत है मौला अच्छे से रख, जिसकी अमानत है बहुस्न खूबी उनको अता फरमा। इस तरह की अदाओं, इस तरह की दुआएं इंशाअल्लाह आप करें। और फिर रमजान रात में भी आप 1 पारा 2 पारा जो भी मुमकिन हो कुरान की तिलावत करें। नहीं अगर कुछ हो भाई 10 लोगों को बुला करके गप्पे ना मारिए, दिखाओ जी कैसा कपड़ा है, दिखाओ जी मैचिंग है कि नहीं, ये सुजाता कर रहे लो कैसा, सब बेकार हो जाता वो। अगर आप जहां तक जग सकती हैं कुरान पढ़िए, दरूद पढ़िए, नहीं तो आप सो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फजर में आप उठिए माशाल्लाह, क्योंकि मगरिब से पहले तक कल जो दिन भर है वो एकदम लेने का दिन है। अल्लाह पाक के फरिश्ते एकदम निदा करते रहते हैं, ये तकबीर कह रहे हैं, ये अल्लाह इनके बाप का नाम ये है, ये पूरा एड्रेसिंग करते और सब अल्लाह की बारगाह में पेश करते। और अल्लाह पाक क्या पाया तुमने, कैसा पाया मेरे बंदों को तुमने, क्या बात है, ये पूछते हैं, ये पूछा जाता है, पूछे जाते हैं फरिश्ते कैसा पाया मेरे बंदों को बंदियों को। तो वो जब आप तिलावत करती रहेंगे ना तो ये अल्लाह मैं देखा कि वो फलानी तिलावत कर रही थी, अच्छा उनके अब्बा का नाम इनका, हालांकि अल्लाह को सब मालूम, लेकिन वो आपके एजाज के लिए, आपकी तकरीम के लिए पाक फरिश्तों से नाम लिलवा रहा कि आप समझिए आज की रात का स्ट्रांगनेस और ईद की भूमिका को समझिए। तो आप जो नेकियां करते हैं ना वो सब अल्लाह की बारगाह में आपके नाम के साथ, आपके एड्रेसिंग के साथ वो अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो अल्लाह पाक कहता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने बख्श दिए, मैंने उन तमाम को बख्श दिए। इससे बड़ी नेमत क्या मिल सकती है आपको। मैं आपको 2 3 5 कपड़े दे दूं और लाखों रुपए के दे दूं और साइड से कहा जाए आपकी बख्शिश ना होगी, आप कपड़े लोगे नहीं लोगे, और आपके पास कोई कपड़े ना हो और आपको मिल जाए कि मैंने बख्श दिया है, कसम से नाचने लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, रक्स करने लगेंगे, ये अल्लाह बड़ा एहसान है तेरा। तो ये मेन चीजें आप आज की रात को ना भूलना, न फरामोश करना। जिनके हुकूक है, चाहे बहन हो, खानदान हो। अच्छा मैं सास बहू के हवाले से भी बोलूंगा, अगर सास बहू के भी झगड़े हैं तो जरा खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। ये बहुत अहम बात है, माशरती सतह बहुत नीचे हो चुका है इस मामले में। बहू भी कदम को चूमे, कदम में गिरे, माँ समझे ना, और माँ जब वो समझ रही है तो उनको बेटी समझे, दोनों एकदम दिल से दिल मिलाए अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं कि ये रात चली जाएगी तो फिर वैसे होंगे, ऐसा नहीं, दिल से दिल मिलाए। खुदा यकीनन आपका जाहिरी दिल मिलाते हुए देख करके बातनी तौर पर भी आप दोनों को मिला दे, ऐसा माहौल कायम कीजिए। होता क्या है 99% नेकियां कर रहे हैं और 1% निगेटिव है, और उसकी वजह से सब पर उसका असर पड़ता निगेटिव। इसलिए कोशिश कीजिए ना, जो मौका मिला है एंजॉय कीजिए उसको, शरीयत के दायरे में आपको जो शरई फ्रीडम मिला है वो एंजॉय कीजिए ना आप अल्हम्दुलिल्लाह। बख्शिश के हवाले से सोचिए, शफाअत के हवाले से सोचिए। इसलिए आज जो है सारे कीने को सीने से दूर कर दीजिए आप, हर छोटा हर बड़ा। अब ये सवाल बाद में नहीं कीजिएगा, गलती तो उसकी है, गलती मैं 1000 कह रहा हूं, मेरी गलती ना भी हो मैं माफी मांगता हूं अपनी बीवी से, मेरी गलती ना भी हो मैं माफी मांगता हूं अपने बच्चों से। क्योंकि माफी मांगना बजाहिर तो लग रहा बीवी से मांग रहे हैं, लेकिन बुलंदी रब अता करता है। झुकना ये अल्लाह के लिए अगर है, चाहे वो किसी की बारगाह में हो, किसी की बारगाह में झुकना हो, किसी की, आप समझिए अगर सास ने बहू से कहा बहू माफ कर दो, हालांकि गलती उनकी नहीं है, तो अल्लाह पाक इतनी इज्जत अता करेगा उनको कि आप देखिए आधा घंटा के बाद वो बहू खुद आकर बोलेगी मम्मी आप कहीं को माफी मांगे, गलतियां तो मैं करी थी ना। यकीन कह रहा हूं मैं, क्योंकि माफी में, तौबा में वो अट्रैक्शन है, वो एक अल्लाह पाक ने रखे हैं कि अगर आपके अंदर वो कमी, अब देखिए ना नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गलती करते माअल्लाह? नहीं, खता से मासूम है, पाक है, लेकिन जब वो बिस्तर पे जाते थे 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते, 100 बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते। क्या अपनी गलती की मग़फ़िरत? नहीं। तो बंदा गलती न भी करे और फिर भी अल्लाह से मांगे तो अल्लाह खुश होता है। वाह, इसलिए बुलंदियां व रफ़अना लका ज़िक्रक, देखा कहा ए हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये आपकी खातिर का मतलब क्या है? यानी आप तो कुछ करे भी नहीं गलती, फिर भी आप माफी मांग रहे हैं, कितनी बड़ी शान रखने वाले हो आप। इसलिए आपकी खातिर हमने आपको, ऐसे ही अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियां, नबी के गुलामों, कनीजों, सुनो, नहीं भी गलती करे आप और आप झुक रही हैं अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह पाक आपको भी ये मुजदा देगा, मेरी बंदियों मैंने तुम्हें बुलंदी दी है, इज्जत दी है, अब तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं कर सकता।
वो सुरखरुई आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए आज की इस खुसूसी दर्स का फैजान यही है कि आप हम सब ये आखिरी से लेकर के पूरी रात भी अल्हम्दुलिल्लाह जरा अट्रैक्शन से गुजारिए, और फिर कल का दिन भी। और आखिरी बात नमाज के हवाले से भी शुक्राना के तौर पर, जब मर्द हजरात घर से चले जाएं नमाज पढ़ने के लिए ईद की अपनी मस्जिद, तो आप लोग ऐसा ना है कि उनका इंतजार कीजिए और शीर खुरमा बनाने में लग जाइए, बस नहीं, आप लोग भी वो वहां जाएं और आप लोग भी अपना मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ने की सलाहियत है तो 2 रकात शुक्राना की नमाज पढ़िए। ईद उल फित्र, फित्र माने होता खाना, इफ्तार फित्र खाना नाश्ता, ईद उल फित्र खाने का वो दिन है, खाने की वो खुशी है। तो आप भी तो रोजा रखे थे ना, यानी आज का दिन वो है कि आज रोजा नहीं, आज खुशियां हैं। अल्लाह आज नाराज होगा अगर रोजा रखेंगे तो, सोचे नाराज होगा। ईद के दिन रोजा रखना हराम है, सोचे ईद से एक दिन पहले रोजा ना रखना हराम था और आज रोजा रखना हराम है। ये दोनों अल्लाह पाक का हुक्म है। आज अल्लाह कह रहा है कि आज खाओ पियो खुशियां मनाओ, किनको कह रहा? जिन्होंने रोजे रखे हैं। इसलिए ईद के दिन जो है आप भी 2 रकात शुक्राना की नमाज, नियत की मैंने 2 रकात नमाज शुक्राना की, नमाज शुक्राना पढ़ करके जब तक वो हजरात नहीं आ रहे हैं मुसल्ला पे बैठकर सजदे में गिर करके दुआ करें, जितनी भी हो सके दुआ करें। बहरहाल मैं ये बोल चुका हूं कि अट्रैक्शन अल्लाह के लिए कामिल रखें। फिर जब सब घर में एकदम माशाल्लाह इबादत भी हो गई, सारी चीजें हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने आने वाले, और फजर की नमाज तो जो छोड़े, जो बच्चे छोड़े उनको शीर खुरमा नहीं देना, क्लियर कह रहा हूं, चाहे मर्द हो या कोई हो, हाँ बना के नहीं देना, कोई भी नमाज नहीं छोड़ना फजर की नमाज, क्योंकि ईद उल फित्र की जो नमाज का मसला है वो वाजिब का है और फजर की नमाज फर्ज है। फर्ज का दर्जा आला है, वाजिब का दर्जा कम है। आला को छोड़कर आप कम को कैसे मतलब पूरी तवज्जो के साथ अपनाने की बात करेंगे? जिसकी भी फजर की नमाज छुटी है, ईद की नमाज में कमियां आएंगी, साफ याद रखिएगा। जो भी उसमें रखे अल्लाह पाक ने कम मिलेगा उनको। इसलिए फजर की नमाज न छूटे। जिनके पास पॉसिबिलिटी है, बहरहाल औरतें एकदम बिल्कुल इसका एहतमाम करें। और कुछ रहा आप लोगों का? हाँ, इसमें तो है माशाल्लाह 2 सवाल है, मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूं। अच्छा, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 35 में वसीला तलाश करने का हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, वसीला से क्या मुराद है? वसीला से मुराद अमल है, यानी आप जो नेक अमल करते हैं ना, ये अल्लाह जो नमाज पढ़ी, अल्लाह नमाज की बरकत से हमें नमाजी बनाए रखना, तो वसीला से मुराद अमल है। लेकिन यहाँ पर असल मिस गाइड ये किया जाता है कि जब अमल है तो इसका मतलब ये हुआ फिर नबी का कह को लेना, वली का कह को लेना। नमाज पढ़े तो नमाज का वसीला लो, हज करे तो हज का वसीला लो, यही है। तो याद रखिएगा, जब आप अपने अमल का वसीला ले सकती हैं, जैसे आपने नमाज पढ़ा तो अल्लाह पाक से कह रहे हैं अल्लाह मेरे नमाज की बरकत से हमारे को बख्श दे वगैरह, मैं नमाज के वसीले से हमारे को बख्श दे, ठीक है। तो सोचें आप, जब एक आप आम ऑर्डिनरी इंसान होकर अपनी नमाज का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई का अकीदा रख सकते हैं, तो राबिया बसरिया की नमाज का क्या हाल होगा? फातिमा की नमाज का क्या हाल होगा? उम्मुल मोमिनीन का नमाज का क्या हाल होगा? क्योंकि नमाज की अहमियत नमाज वाले से है। एक शख्स है जो आप हैं, फर्ज कीजिए एक वक्त की नमाज पढ़ती हैं और आप इसी आयत के जरिए से उसका वसीला ले रही हैं, और एक शख्स है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। बताइए आपकी नमाज स्ट्रांग है या 5 वक्त की नमाज वाली का स्ट्रांग है? तो आप समझ सकती हैं कि यहां नमाज से मुराद बेशक यानी अमल मुराद है वसीला से, लेकिन अमल से कहीं ज्यादा ये अमल वाले जो होते हैं उनका मकाम आला होता है। नमाज ताबे है नमाजी के, नमाजी जब तक जिंदा है तो नमाज है, हाजी है तो हज है। हम अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो नमाज कहां है? इंसान मर गए तो नमाज का तस्वुर है ही नहीं। इसलिए नमाज का वसीला ले सकते, हज और ज़कात का वसीला ले सकते, लेकिन नमाज वाले अगर अहमियत के हामिल हैं, और चूंकि अहमियत के हामिल होंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की नमाज अहमियत की हामिल है। क्यों? इसलिए कि नबी है मुत्तकी, उनकी नमाज अहमियत की हामिल है क्योंकि वो मुत्तकी है। और एक आम आदमी है जो फासिक मौलिन है और नमाज पढ़ता है, उनकी नमाज वो अहमियत की हामिल नहीं है जो एक आला मुत्तकी की नमाज। मालूम हुआ कि नमाज जो अमल है वो ताबे है आमिल के, नमाजी के। तो ऐसे ही जब नमाज का वसीला ले सकते, हज का वसीला ले सकते, तो नमाजी का भी ले सकते, नमाजी का भी ले सकते। जैसे आपने नमाज का वसीला लिया कि अल्लाह मेरी नमाज ऐसा। अच्छा, एक और बात कि आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मेरी बहन की नमाज के वसीले से मुझे बख्श दे, ऐसा तो नहीं बोल सकते।
अपनी नमाज का ही तो आपको वसीला लेंगे, सोचे आप। तो जब आप अपनी नमाज का वसीला लेने पर पाबंद हैं तो आपका दिल जरूर कहेगा, ए अल्लाह मैं तो गुनहगार हूं, मेरी नमाज भी क्या होगी पता नहीं, तो फातिमा और फातिमा की नमाज के वसीले से मुझे बख्श दे। बताओ आपका दिल कितना मुतमईन होगा। तो यहां पर मिसलीड ना हो, नमाज का ले सकते, हज का ले सकते, तो जब नमाज और हज का ले सकते तो नमाज से जो अफजल और आला का उन्वान रखने वाले नबी हैं, वली हैं, उनका भी ले सकते। जी, दूसरा सवाल है, हम जिसको ज़कात देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि रकम आप अपने पास रखिए, उनके बच्चे एडमिशन है नहीं, एडमिशन के वक्त देना, क्या ये ज़कात की रकम हम अपने पास रख सकते? नहीं, ज़कात जो है मुस्तहक को अदा कर देना है। अगर वो उनके बच्चे मुस्तहक हैं तब फिर रख सकते, फिर वो आप अमीन है। अगर वो मुस्तहक हैं तो ये बहुत अजीब हो रहा है, ज़कात की रकम से एडमिशन फीस दे रहे हैं। आप जिनको ज़कात दे रहे हैं, पहले ये देखिए कि जिन बच्चे के लिए वो कह रही है कि ज़कात की रकम है अपने पास रखिए, क्या वो मुस्तहक है या नहीं। अगर वो मुस्तहक है, फकीर की मंजिल में, मिस्कीन की मंजिल में, जितने भी मैंने सूरह तौबा के आयत नंबर 60 के जरिए बताया है, वो मुस्तहक है तो उनको दे सकते हैं, और जब दे सकते हैं तो उनकी रकम रख भी सकते हैं। ये है मेन बात, ये है रख सकते हैं, ये मेन बात नहीं है। ज़कात के मुस्तहकीन ने, जैसे फर्ज कीजिए मैं मुस्तहक हूं और आप ज़कात दे रही, मैंने कहा कि आप इसको रख लीजिए बाद में लूंगा, तो आप रख सकती हैं। लेकिन अगर मैं मुस्तहक ही नहीं हूं तो मैं होता कौन हूं आपको कहने वाला कि मेरे बच्चे के एडमिशन के वक्त दीजिएगा। और जब मेरे बच्चे मुस्तहक ही नहीं है, मैं मुस्तहक ही नहीं हूं, तो आपको कहने वाला कौन होता हूं। इसलिए जो मुस्तहक हैं उनको ज़कात देना है। अगर ज़कात मुस्तहकीन के बेटे फीस के एतबार से वो देने के लिए अमानत के तौर पर कह रहे हैं कि रखिए, मैं मुस्तहक हूं, ये पैसा रखिए, मेरे को दिए तो खत्म हो जाता, खर्चा हो जाता, आप अपने पास रखिए, तो फिर आप अमानत के तौर पर रख सकती हैं। तो मेन है ज़कात के मुस्तहकीन को ज़कात दे देना, ये मेन है। अब दे देने वाले ने अगर आपको रखने कहा तो रख सकते, ये है। हो गया जी। चलिए तिलावत कुरान का